Lesson 02. Clearing in the sky. पहाड़ी इलाके की चोटी पर ज़मीन का एक साफ टुकड़ा। Who did this? I asked. Who cleared this land and fenced it? Fenced it against what? Stray cattle if they ever get out of the pasture, he answered me curtly, bluntly. I cleared this land. And I fenced it. But why did you ever climb to this mountain top and do this? I asked him. Look at the fertile land we have in the valley. Fertile, he laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf-rot loam, a cliff or very steep bank. This is the land, son. This is it. I've tried all kinds of land. ये किसने किया? मैंने पूछा। इस ज़मीन को किसने साफ़ किया और बाड़ लगाई? किस चीज़ के खिलाफ़ बाड़ लगाई? आवारा मवेशी अगर कभी चरागाह से बाहर निकल जाएं। उन्होंने मुझे दो टोक अंदाज में जवाब दिया। मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया और इस पर बाड़ लगा दी, लेकिन आपने कभी इस पहाड़ी चोटी पर चढ़कर ऐसा क्यों किया? मैंने उनसे पूछा। वादी में हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन को देखें। रॉट लॉम, एक चट्टान या बहुत खड़ा किनारा। ये ज़मीन है बेटा, ये है। मैंने हर तरह की ज़मीन आज़माई है। Then he smelled the dirt. He whiffed, a brief smell, carried on a current of air, and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. Just like fresh air, he said as he let the dirt run between his fingers. It's pleasant to touch, too, he added. But, Dad, I said. I know what you think, he interrupted. Your mother thinks the same thing. She wonders why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams, and tomatoes. But, he almost whispered, anything grown in new ground like this has a better flavor. Wait until my tomatoes are ripe. फिर उन्होंने मिट्टी की बू सूंघी। उन्होंने सरगोशी की, एक मुख्तसर बू हवा के एक करंट पर, और इस जंगली मिट्टी की बू को अपने नथनों में लेकर गए, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। उन्होंने कहा जब उन्होंने अपनी उंगलियों के दरमियान मिट्टी को चलने दिया, उसे छूना भी खुशगवार है। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन वालिद, मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोचते हो। उन्होंने मुझे बात करने से रोक दिया। तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। वो हैरान है कि मैं अपने आलू, शकरकंदी और टमाटर बढ़ाने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़कर आया हूँ। लेकिन उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, नई ज़मीन में इस तरह उगने वाली कोई भी चीज़ बेहतर जायका रखती है। मेरे टमाटर के पकने तक इंतज़ार करें। You'll never taste sweeter tomatoes in your life. They'll soon be ripe, too, I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. Then above the tomatoes were half-dozen rows of yams. Above the yams were, perhaps, 3 dozen rows of potatoes. I don't see a weed in this patch, I laughed. Won't they grow here? I won't let them, he said. Now this is what I've been wanting you to see. This is the cleanest patch I've ever seen, I bragged. But I still don't see why you climbed the top of this mountain to clear this patch. And you did all this against your doctor's orders. आप अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मीठे टमाटरों का मज़ा कभी नहीं चखेंगे। वो भी जल्द ही पक जाएंगे। मैंने किते के निचले हिस्से में टमाटरों की दर्जन भर या इससे ज़्यादा कतारों को देखते हुए कहा। फिर टमाटरों के ऊपर शकरकंदी की निस्फ दर्जन कतारें थीं। शकरकंदी के ऊपर शायद आलू की 3 दर्जन कतारें थीं। मुझे इस किते में घास नज़र नहीं आती। मैं हंसा। क्या वो यहाँ नहीं बढ़ेगी? मैं उन्हें नहीं होने दूँगा। उन्होंने कहा, अब मैं यही चाहता हूँ कि आप देखें, ये सबसे साफ़ सुथरा किता है जो मैंने देखा है। मैंने शेखी मारी, लेकिन मैं अब भी नहीं समझा कि आप इस किते को साफ़ करने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े, और आपने ये सब अपने डॉक्टर के हुक्म के खिलाफ किया। Which one? He asked, laughing. Then he sat down on a big oak stump and I sat down on a small black gum stump near him.
This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. And on the lower side of the clearing there was a rim of shadow over the rows of dark, stalwart, physically strong plants loaded with green tomatoes. "What is the reason for your planting this patch up here?" I asked. 20 times in my life," he said, "a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. Told me not to work. Not to do anything but to live and enjoy the few days I had left with me." कौन सा? उन्होंने हंसते हुए पूछा। फिर वो बलूत के एक बड़े स्टंप पर बैठ गए और मैं उनके करीब ब्लैक गम के छोटे स्टंप पर बैठ गया। पहाड़ पर ये वह जगह थी जहाँ सूरज ज़मीन पर चमक सकता था और क्लीयरिंग के निचले हिस्से पर सब्ज़ टमाटरों से लदे गहरे मजबूत पौधों की कतारों पर साए का एक किनारा था। "आपके नज़दीक ये कतार लगाने की क्या वजह है?" मैंने पूछा। "ज़िंदगी में 20 बार," उन्होंने कहा, "एक डॉक्टर ने मुझे कहा है कि घर जाओ और जब तक हो सके अपने ख़ानदान के साथ रहो। काम ना करने को कहा, कुछ करने के लिए नहीं, मगर उन चंद दिनों को जीने और एंजॉय करने के लिए जो मेरा साथ छोड़ रहे थे।" "If the doctors have been right," he said, winking at me, "I have cheated death many times. Now, I've reached the years the good book allows to man in his lifetime upon this earth. 60 years and 10. He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana, a brightly colored piece of cloth that is worn around the neck or head. "And something else, Jess," he said, motioning, to make a signal to someone, for me to follow him to the upper edge of the clearing. "You won't understand until you reach 60 and 10. "अगर डॉक्टर ठीक कह रहे हैं," उन्होंने मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा, "मैंने कई बार मौत को धोखा दिया है। अब मैं उन सालों तक पहुंच गया हूं जिनकी अच्छी किताब इंसान को इस ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी में इजाज़त देती है। 63 साल और 10, यानी तकरीबन 70 साल। वो स्टंप से उठे और अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से पसीने की बूंदों को अपने बड़े नीले बंदाना यानी पगड़ी से साफ किया। और कुछ और, जैस, उन्होंने इशारा करते हुए कहा मुझे क्लीयरिंग के ऊपरी किनारे तक उनका पीछा करने के लिए। "आप इस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप 3 और 10 तक ना पहुंच जाएं, यानी After these years your time is borrowed. And when you live on that kind of time, something goes back. Something I cannot explain. You go back to the places you knew and loved. See this steep hill slope?" He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. "Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. We raised corn, beans, and pumpkins here," he continued, his voice rising with excitement. "He talked with his hands, too. Those were the days." इन सालों के बाद आपका वक्त मुस्तार होता है, और जब आप इस तरह के वक्त पर जीते हैं तो माजी याद आता है, जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। आप उन जगहों पर वापस जाते हैं जिनको आप जानते थे और प्यार करते थे। ये खड़ी पहाड़ी ढलवान देखें। उन्होंने क्लीयरिंग के ऊपरी किनारे से नीचे की गहरी वादी की तरफ इशारा किया। "मैं और तुम्हारी माँ, जब वो 19 साल की थीं और मैं 22 साल का था, मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। हमने यहाँ मकई, फलियाँ और कद्दू उगाए।" उन्होंने बात जारी रखी। उनकी आवाज़ जोश से बुलंद हो रही थी। उन्होंने अपने हाथों से भी बात की। वो क्या दिन थे! This wasn't the land one had to build up. It was already here as God had made it, and we had to do was to clear the trees and burn the bush. I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. And we raised more than a barrel of corn to the shock. That's why I came back up here. I went back to our youth. And this was the only land left like that was. And, Jess, he bragged, regardless of my 60 years and 10, I plowed it. Plowed it with a mule.
I have, with just a little help, done all the work. It's like the land your mother and I used to farm here when I brought my gun to the field and took home a mess of fox squirrels every evening. ये वो ज़मीन नहीं थी जिसे तामीर करना था, ये पहले ही यहाँ मौजूद थी, जैसा कि खुदा ने बनाया था, और हमें दरख्तों को साफ करना और झाड़ियों को जलाना था। मैंने इस पहाड़ को मवेशियों के साथ जोता जब पहली बार हल चलाया गया था, और हमने 1 बैरल से ज़्यादा मकई उगाकर लोगों को झटका पहुंचाया। इसलिए मैं यहाँ वापस आया हूँ। मैं अपनी जवानी में वापस चला गया था, और यही वो वाहिद ज़मीन रह गई थी जो ऐसी थी, और जैस उसने शेखी मारी, मेरे 60 साल और 10 से कतई नज़र मैंने यहाँ हल चलाया, इसे खच्चर से चलाया। मैंने सिर्फ एक छोटी सी मदद से तमाम काम मुकम्मल कर लिए। ये इस ज़मीन की तरह है जिस पर आपकी वालिदा और मैं यहाँ खेती बाड़ी किया करते थे, जब मैं अपनी बंदूक खेत में लाता था और हर शाम लोमड़ी गिलहरियों का शिकार घर ले जाता था। I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. And I could remember, years later, when they farmed this land. It was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow. That was when I was 6 years old and they brought me to the field to thin corn. One lost my little plow in a furrow, a row in the soil, and I cried until he made me another plow. But I never loved the second plow as I did the first one. मैंने नीचे की वसी पहाड़ी ढलवान को देखा जहाँ मेरी माँ और बाप ने खेती बाड़ी की थी, और मुझे याद है बरसों बाद जब उन्होंने ये ज़मीन काश की थी, इसी खड़ी ढलवान पर मेरे वालिद ने एक बार मुझे लकड़ी का हल्का सा हल बनाकर दिया था। ये तब था जब मैं 6 साल का था और मुझे घनी मकई के खेत में ले आए। मेरा छोटा हल एक खाल में खो गया था, मिट्टी में एक कतार में, और मैं रोता रहा, और उस वक्त तक रोता रहा जब तक कि उन्होंने मुझे दूसरा हल ना बना दिया। लेकिन मैंने दूसरे हल को कभी पसंद नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले को किया था। Now, to look at the mountain slope, grown up with tall trees, many of them high enough to have sawed into lumber at the mill. It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope and had farmed it for many years. For many of the trees were 60 feet tall and the wild vines had matted their tops together. And, Jess, he almost whispered, the doctors told me to sit still and to take life easy. I couldn't do it. I had to work. I had to go back. I had to smell this rich loam again. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. अब पहाड़ी ढलवान को देखिए, लंबे लंबे दरख्तों के साथ परवान चढ़े। इनमें से बहुत से इतने ऊंचे हैं कि उनको आरे में डालकर फर्नीचर में काटा जा सकता है। यकीन करना मुश्किल था कि मेरे वालिद और वालदा ने इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था और बहुत से लोगों के लिए खेती बाड़ी की थी, क्योंकि बहुत से दरख्त 60 फीट लंबे थे और जंगली अंगूरों ने उनकी चोटियों को जोड़ दिया था। और जैसे उसने तकरीबन सरगोशी की, डॉक्टर्स ने मुझे खामोश बैठने और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कहा। मैं ये नहीं कर सकता था, मुझे काम करना था, मुझे वापस जाना पड़ा, मुझे उस भरपूर लौम को दोबारा सूंघना पड़ा। ये ज़मीन इस ज़मीन की तरह नहीं है जिसे मैंने अल्फाफा उगाने के लिए बनाना था। This is real land. It's the land that God left. I had to come back and dig in it. I had to smell it, sift, to put flour, sugar, etc. through a sieve, equals wire net shaped like a bowl, to break up large pieces. It throw my fingers again. And I wanted to taste yams, tomatoes, and potatoes grown in this land. From this mountaintop I looked far in every direction over the rugged, rough hills my father and mother had cleared and farmed corn, maize, and cane. The one slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared his last, small patch.
ये असली ज़मीन है, ये वो ज़मीन है जिसे खुदा ने छोड़ा है। मुझे वापस आकर इसमें खोदना पड़ा, मुझे उसे सूंघना पड़ा, छलनी से छानना पड़ा, इसे दोबारा अपनी उँगलियों से तोड़ना पड़ा और मैं इस सरज़मीन में उगने वाले शकरकंदी, टमाटर और आलू का मज़ा चखना चाहता था। इस पहाड़ी चोटी से मैंने हर तरफ दूर तक उन नाहमवार पहाड़ियों को देखा जो मेरे वालिद और वालदा ने मकई और गन्ने को साफ करके काश्त की थीं। वो ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, वो थी जिससे मेरे वालिद ने अपना आखिरी छोटा-सा किता साफ किया था। I followed him from his clearing in the sky, down a new patch, toward the deep valley below. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep path? That was when the doctor didn't give me a week to live. I made a longer, easier path so I wouldn't have to do so much climbing. Then, as I got better, he explained, I made another path that was a little steeper. And as I continued to get better, I made steeper paths. That was one way of knowing I was getting better all the time. I followed him down the path that wound this way and that, 3 times the length of the path we had climbed. पहाड़ी इलाके की चोटी पर ज़मीन के साफ टुकड़े से लेकर नीचे गहरी वादी की तरफ मैं उनके पीछे चला। लेकिन आपके पास इतने सारे रास्ते क्यों हैं जो फ्लैट से ऊपर के खड़े रास्ते पर आते हैं? ये वो वक्त था जब डॉक्टर ने मुझे जिंदा रहने के लिए 1 हफ्ता भी नहीं दिया था। मैंने एक लंबा और आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे इतनी चढ़ाई ना करना पड़े। फिर जैसा कि मैं बेहतर हुआ, उन्होंने वजाहत की, मैंने एक और रास्ता बनाया जो थोड़ा सा तेज़ था और जैसे जैसे मैं बेहतर होता जा रहा था, मैंने तेज़ रास्ते बनाए। ये जानने का एक तरीका था कि मैं हर वक्त बेहतर हो रहा हूँ। मैं उनके पीछे चला, उस रास्ते पर जो पहले रास्ते से 3 गुना ज़्यादा था, जिस पर हम चढ़ कर आए थे। That's all from today. Happy learning.